Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. My name is Waqas Ahmed, and we were doing a topic called narrations. So, in the last class, this is the third lecture of the same topic. I hope my points were very much cleared in the last two lectures. Last lecture हम लोगों ने छोड़ा था इस point के ऊपर when we started converting these sentences. I converted first sentence on my own. He said to us, I always reach there on time, and I ask you to convert the remaining four sentences. I hope you have done it. Let's see if you are correct or not. If there if there is any error, you need to rectify it right there, right now. These are the answers. For example, the second sentence is she said to them, you blamed everything. Let me open my marker. It says she said to them, you blamed everything. The answer is this said to is changed into told. That them remains constant, and in place of commas and inverted commas I place that. She told them that यहाँ तक तो कोई problem नहीं होगा. Then this word you has been changed with they because this is second person and second person is always changed with an object of reporting a speech. Then we see that this is a past simple tense, and past simple tense is always changing past simple. That is why it is had blamed. Alright. The next sentence is we said to him they are criticizing each and every performance. Their answer is we told him that they were criticizing each and every performance. उसके बाद है they said to her you will follow his footsteps. The answer should be they told her that she would follow his footsteps. The last sentence is Ronaldo said to him she was playing a prank on you, and the answer should be Ronaldo told him that she had been playing a prank on you on him. ठीक है जी. Now then we need to start a lecture for today, and this is exceptional cases of narrations. एक्सेप्शन कहते हैं उस चीज को जो कि नॉर्मल रूटीन से हट कर हो, जो आम उसूल ज़वाबित से ज़रा हट कर चले, तो उसे एक्सेप्शन कहा जाता है. ठीक है. तो अभी इससे पहले जितनी भी नरेशन हम लोगों ने पढ़ी ना, दोज आर द कन्वर्जन्स ऑफ सम नॉर्म्स. दिस इज व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल क्लास जो कि जो है वो आम रूल से थोड़ा सा हटकर होती है. तो इन चीज़ों को भी हमने अपने ध्यान में रखना होगा बिकॉज एट टाइम्स देयर आस्क्ड इन पेपर्स. देखिए कन्वर्जन्स ऑफ इम्पेरेटिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव क्या होता है हमें सबसे पहले इसको समझने की ज़रूरत है. इम्पेरेटिव इज बेसिकली अ सेंटेंस in which we don't have agent, जिसको आम अल्फाजों में मिसकंसेप्चुअली हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि भाई जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता उसे इम्पेरेटिव कहा जाता है. रिमेंबर दैट देयर कैन नेवर बी अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट. यस, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एजेंट. को एजेंट कहा जा सकता है. तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है, मतलब एजेंट नहीं है, और बात डायरेक्टली स्टार्ट होती है वर्ब से, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक इम्पेरेटिव है. फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि ओपन द डोर. So open the door, that is a sentence that starts with a verb directly, open, right? For example, मैं कह रहा हूँ कि she closes the door. So this is not an imperative because the sentence has an agent. ठीक है, इसके अंदर जो है ना वो एक agent मौजूद है और doer of an action define हो रहा है. The conversion of imperative कहते हैं हर उस sentence को जिसके अंदर हमारे पास doer of an action mention नहीं होता. ठीक है जी. So primarily imperative sentences could be categorized in 4 types. हमारे पास ये 4 types हो सकती हैं. Imperative की we have sentence in which we give advice. There are sentences in which we ask someone not to do something. This is forbidding sentence. Then we have a sentence in which we order someone to do something, and then we have a sentence in which we request someone to do something or not to do something. ठीक है जी. Now this is very important. This note is extremely important, and this is what makes it exceptional. कि बेटा ये जो imperative sentences होते हैं ना, imperative sentences पहली बात तो है कि हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे. पहले आप इस बात को समझें. मतलब मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि पॉलिश माई शूज. दिस इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म पॉलिश.
या डू नॉट पॉलिश माई शूज, दिस अगेन इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, कभी भी ये पास्ट सिंपल के अंदर नहीं हो सकता या किसी और टेंस में नहीं हो सकता। सही है, पहली बात। दूसरी बात है कि भाई जब हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं ना, conversion of imperative, so we need to understand that we don't have to change a tense in imperatives। हम लोग imperatives के conversion के अंदर tense को change नहीं करते, इस बात को याद रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अच्छा, मैंने ना इसकी कुछ अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं। पहले सेंटेंसेस देखते हैं कौन सी कैटेगरी के हैं। वी हैव एडवाइज और ऑर्डर सेंटेंसेस, ठीक है? एडवाइजिंग सेंटेंसेस हैं या ऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे सेंटेंस है भाई, फादर सेड टू सन फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है? अब ये दैट कैन बी एन ऑर्डर, दैट कैन बी एन एडवाइस, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो मैंने सेड टू की जगह पे सेंटेंस वर्ड यूज़ किया ऑर्डर्ड, ठीक है? इफ़ यू वांट आप लोग यहाँ पे एडवाइस का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। फादर ordered son, in place of commas and inverted commas, earlier we were using a word that, now we are in this part we are using the word to, ठीक है? ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखें। सेट टू की जगह पे ऑर्डर आ गया, देन सन रिमेन्स द सेम, इन प्लेस ऑफ कॉमास एंड इनवर्टेड कॉमास आई एम यूजिंग टू। एंड इफ यू सी फॉलो ट्रैफिक रूल्स, दैट रिमेन्स सेम। मैं फॉलोड ट्रैफिक रूल्स नहीं कह रहा, मतलब प्रेजेंट सिंपल को मैंने पास्ट सिंपल में चेंज नहीं किया, बट द टेंस रिमेन्स द सेम, ठीक है? अब नेक्स्ट सेंटेंस है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है जी? दैट कैन बी एन ऑर्डर, दैट कैन बी एन एडवाइस, दैट डिपेंड्स आप लोग जिस अंदाज में इसको बनाना चाहें। रिलेटिवली आसान चीज़ है, इसलिए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए। थर्ड सेंटेंस है, डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। दिस इज अ सेंटेंस फॉर विच एडवाइस इज अ बेटर वर्ड, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है? The point is we don't need to make changes in tenses whenever we are doing advise or order, advising or ordering sentences। अच्छा, अब इसके बाद है कुछ requesting sentences in which we ask someone humbly to do something, या in which we ask someone not to do something in the most humble way। दोनों केसेस हो सकते हैं ना, मतलब किसी से कोई काम ना करने की भी तो दरखास्त होती है। तो अब पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, he said to his father please have some mercy, ठीक है? तो देखो, अब हाउ डू वी नो, अच्छा एक एक पॉइंट रह गया पिछले पिछली बात के पिछले उसके अंदर, गिव मी अ सेकंड। अब भाई ये हमारे पास पॉइंट है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो याद रखना कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मतलब एजेंट मेंशन नहीं होगा, डूअर ऑफ एन एक्शन मेंशन नहीं होगा। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि भाई ये चीज जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये रूल्स फॉलो होते हैं, ठीक है जी? अब यहाँ पे देखें, एक तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, दूसरा इसके अंदर एक एक बड़ा हम्बल पोलाइट वर्ड यूज हुआ है, प्लीज, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सेंटेंस को चेंज करने के लिए सेड टू की जगह पे ना एक वर्ड यूज किया, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। सो आई हैव ऑलरेडी यूज्ड अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्लीज इन माय सेंटेंस। मैं प्लीज के लिए एक ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट यूज कर चुका हूँ, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। So now I don't need to repeat please in my sentence again। मुझे please को repeat करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी? वो extra this would become more like begging rather requesting, ठीक है? So he requested his father to have mercy, to have some mercy। So we will not repeat this word please here, ठीक है? She said to her friend kindly get a hold of yourself, kindly get a hold of yourself। So again we will not repeat the word kindly here, sentence बनेगा she requested her friend to get a hold of herself, ठीक है जी? So this is what the conversion of requesting sentence is। के बाद फिर हमारे पास same thing goes with the forbidding sentence। forbidding sentence के अंदर भी फॉर्मूला वही है। forbidding कहते हैं in which we ask someone not to do something, alright? अच्छा, रिक्वेस्टिंग के अंदर एक बात ऐसी भी तो हो सकती है कि फॉर एग्जांपल somebody requests के she said to his father
प्लीज डू नॉट यूज harsh words. Now, for example, there's a daughter and she's requesting her father not to use harsh words. ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा सेंटेंस, उस टाइम सेंटेंस बन जाएगा she requested her father not to use harsh words. तो जो यहाँ पे हम लोग to यूज कर रहे हैं ना, तो अगर सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट ही नेगेटिव सेंस के अंदर है तो सिर्फ to यूज नहीं होगा बल्कि not to यूज होगा। ठीक है जी, तो ओके, अब फॉरवर्डिंग सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। He said to her, do not fall in his trap. Do not fall in his trap. तो देखो, the real identification of these type of sentences that they always start with don't. ये don't से start हो रहा है, तो मतलब ये forbidding sentence है। ठीक है, सेंटेंस मैं ऐसे चेंज करूंगा कि मैंने set to की जगह पे forbade का वर्ड यूज किया। He forbade her to fall in that trap. Now again, same rule. Because of the fact that I have used this negative word once, I don't need to repeat the word don't again. मैंने forbade का word use कर लिया है, इसलिए मुझे दोबारा से do not का word use करने की या not to का word use करने की जरूरत नहीं है। डबल नेगेटिव हो जाएगा, एंड डबल नेगेटिव इज अ रॉन्ग ग्रामेटिकल एस्पेक्ट। अच्छा जी, अच्छा ये सेंटेंस जो है कई तरीके से ही बन सकता है, मतलब दिस कैन बी एन ऑर्डर आल्सो। ये अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डर था ये, तो सेंटेंस ऐसे ही बन जाएगा कि ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू फॉल इन दिस ट्रैप। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर का वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, तब तो मैं एक नेगेटिव वर्ड नॉट यूज कर लूंगा। बट इफ आई एम यूजिंग द वर्ड फॉरबेड हियर व्हिच इटसेल्फ मींस नहीं, मना करना, तो फिर मैं डू नॉट का वर्ड यूज नहीं करूंगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, CFO said to GM, चीफ फाइनेंस ऑफिसर said to जनरल मैनेजर to not reveal this report। ठीक है, तो मैं सेंटेंस में बोल सकता हूँ कि CFO forbade GM to reveal that report। ठीक है, ये ऐसे हो सकता है। या मैं अगर बोलना चाहूँ ऑर्डरिंग सेंस के अंदर, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि CFO ordered GM not to reveal that report। अच्छा, दैट दिस और दैट से याद आया कि देयर आर सम परमानेंट चेंजेस आल्सो। ठीक है, नरेशंस के अंदर जो है ना वो कुछ परमानेंट चेंजेस होते हैं, जिसके पीछे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, बट वी जस्ट नीड टू मेमोराइज इट। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर दिस का वर्ड नजर आए, तो आप उसको दैट में चेंज करोगे इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, अगर वहाँ पे नाउ का वर्ड नजर आए तो आप उसको देन में चेंज करोगे। अगर आपको टुडे का वर्ड नजर आए आप तो उसको दैट डे में चेंज करोगे। अगर टू नाइट का वर्ड नजर आए तो आप दैट नाइट में चेंज करोगे। अगर आपको टुमारो का वर्ड नजर आए तो आप द नेक्स्ट डे में चेंज करोगे। अगर आपको यस्टरडे का वर्ड नजर आए तो आप द प्रीवियस डे के अंदर ये चेंज करोगे। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हेन वी हैव अ लाइव सेशन इंशाल्लाह यू कैन आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। आप लोग जो ना वो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे सवाल कर लेना, तो सही है। अब आगे चलते हैं। अच्छा भाई, नाउ दिस इज समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। अगर आपको ये कन्वर्जन आ गई ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया जाता है, तो समझें कि आप लोगों को नरेशन समझ में आ चुकी, बिकॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चेक ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ नरेशन। तकरीबन सारे एस्पेक्ट जो है ना वो नरेशन के चेक हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कन्वर्जन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ना दो टाइप्स होती हैं, एक तो होते हैं कंफर्मेटिव क्वेश्चंस और एक होते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब एक टाइप ये है कंफर्मेटिव सेंटेंसेस और एक टाइप है डिटेल्ड सेंटेंसेस। इसको मैं बोल्ड करना भूल गया और ये क्वेश्चन होना चाहिए था। एनीवे, देखो अब मैं आप लोगों के सामने ना दो सेट ऑफ मैं आप लोगों के सामने दो सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, मुझे फर्क बताना है इसके अंदर क्या है। मिसाल के तौर पे मैं सवाल करता हूँ, डू यू ईट बिरयानी, विल यू प्ले क्रिकेट, और हैव यू ड्रिवन दिस कार। तीन सेंटेंसेस है। डू यू ईट बिरयानी, विल यू ड्राइव दिस कार, नहीं, विल यू गो देयर, एंड हैव यू ड्रिवन दिस कार।
ये एक टाइप ऑफ सेंटेंस है। इफ यू नोटिस ये सारे ना, ये जो मैंने अभी जुमले बोले हैं, ये तीनों कंफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर ऑल स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब एंड आई डोंट नीड एक्सप्लेनेशंस फॉर देम। मतलब इसके आंसर के लिए ना मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे आर जस्ट कंफर्मेटिव, यस और नो, बस इस चीज की जरूरत है मुझे। मैं कह रहा हूँ कि डू यू ईट बिरयानी, तो द अदर पर्सन वुड रिप्लाई यस आई डू और नो आई डोंट। मैं रीजन नहीं पूछ रहा, लॉजिकल रीजनिंग नहीं चाहिए अभी मुझे, आई एम जस्ट आस्किंग यस और नो। देन आई आस्क ये will you go there, again a sentence starting with the helping verb, so will you go there, he will or he will not, that's it. There is no logical justification or reasoning or explanation to it. At least I'm not asking it, right? Third sentence was have you driven this car, again a sentence starting with the helping verb, this is confirmative. Have you driven this car, no I have not, or yes I have. The confirmative questions याद रखने वाली बात ये कि बेटा they always start with the helping verb or with a model word, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। फिर कुछ होते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस। डिटेल्ड क्वेश्चंस आर द वंस दैट स्टार्ट विद WH वर्ड्स, ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, ये उन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सही है। अब मैं आपको तीन सेंटेंसेस और बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि विच टाइप ऑफ बिरयानी डू यू प्रेफर, बीफ और चिकन। मैंने पहले पूछा था डू यू ईट बिरयानी, फॉर दैट आई नीडेड यस और नो, but now I'm asking which type of biryani do you eat, which type of biryani do you prefer. So for that मुझे ना कुछ डिटेल चाहिए होगी। so for example the other person reply I love beef biryani या I like beef biryani more, ठीक है, मतलब डिटेल होगा, yes और no नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता मैं उसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि which biryani do you prefer और बंदा बोले yes, that is nonsense। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि will you go there, the other person मैं for example मैं उससे पूछता हूँ कि when will you reach your home, when will you reach your house, so the other person replies no, मतलब this does not make any sense। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि when will you reach your house, the other person should reply कि I will reach home after 4 hours, after 5 hours or whatever, या कुछ explanation आएगी कि I may not reach home whatever। सिर्फ yes और no से बात नहीं हो सकती, ठीक है। अब इसके नीचे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, he said to his daughter how are you now। अब मुझे ये बताओ कि भाई ये कंफर्मेटिव है या डिटेल्ड है। ऐसे जैसे कहा भाई he said to his daughter did you complete your work, oh sorry, did you complete your work। तो इसमें से आप मुझे बताएं कि कौन सा कंफर्मेटिव है और कौन सा डिटेल्ड है। दिस वन इज अ डिटेल्ड सेंटेंस एंड दिस वन इज अ कंफर्मेटिव। वजह देखो, ये एक WH वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, डिटेल्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, और ये एक कंफर्मेटिव क्वेश्चन है क्योंकि ये हेल्पिंग ऑफ स्टार्ट है, ठीक है। पहली बात ये कि अच्छा ये टाइप ये बाइफरकेट क्यों किया है इसको, बिकॉज कंफर्मेटिव क्वेश्चंस को चेंज करने का तरीका अलग है, डिटेल क्वेश्चंस को चेंज करने का तरीका अलग है, ठीक है। सो व्हेन यू सी अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, मेथड थोड़ा सा अलग होगा, और इस तरीके से अगर जब देखेंगे WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब ये टॉकिंग अबाउट कंफर्मेटिव क्वेश्चंस फर्स्ट, हम लोग कंफर्मेटिव क्वेश्चंस के बारे में पहले बात कर रहे हैं। देखो भाई, अब इसकी ना एक्सप्लेनेशन है कुछ, आई वुड नीड योर अटेंशन। देखें, पहली बात बेटा ये चीज समझो कि कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, मतलब इंट्रोगेटिव मतलब जिसके अंदर कुछ सवाल किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इंट्रोगेटिव होता ही इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुआ होता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि आर यू प्लेइंग स्नूकर, तो भाई ये इंट्रोगेटिव इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले यूज किया है। मैंने बोला आर यू प्लेइंग स्नूकर। अब इसी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को अगर मुझे एक सिंपल अफर्मेटिव में चेंज करना है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा कि मैं सब्जेक्ट को पहले कर दूंगा और हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि यू आर प्लेइंग स्नूकर, मतलब मैंने सब्जेक्ट पहले लिख दिया और उसके बाद वर्ब बाद में लिखा, ऐसा ही है। अब बेटा याद रखना इस चीज को
कि जब भी हम कन्वर्जन्स करते हैं और हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, वी सेड टू हिम आर यू प्लेइंग क्रिकेट, सो द फंडामेंटल रूल इज कि जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वी विल नॉट लेट दिस सेंटेंस बी इन इंट्रोगेटिव, हम उसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तरीका क्या होगा, जो मैंने आपको बताया है कि भाई सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में आएगा। ठीक है जी। अब देखो, अब हम लोग यहाँ से स्लाइड से चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ वी यूज एन एडिशनल वर्ड इफ और वेदर। इफ और वेदर एक एडिशनल वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्जन कंफर्मेटिव क्वेश्चंस की कन्वर्जन में। ठीक है। और ये वाला पॉइंट मैंने भी आपको समझाया कि भाई सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आता है। अब देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी सेड टू हिम आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब सेड टू की जगह पे आपने लगाया आर। ठीक है, ये दिस इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड आई गेस, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, वी आस्क्ड हिम। अब ये आ गया वो एडिशनल वर्ड जिसका ऊपर जिक्र है। इसके अंदर ना हम लोग टू यूज करते हैं, ना हम लोग दैट यूज करते हैं, एक एडिशनल वर्ड यूज करते हैं जो कि इफ हो सकता है या फिर वेदर हो सकता है। आई लाइक द वर्ड इफ, सो आई एम यूजिंग इफ। आप लोग वेदर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। सही है। अब ये है असल गेम जिसकी मैंने आप लोगों को जिसके बारे में बात करी है कि भाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट है ना बेटा, ये आर यू प्लेइंग क्रिकेट दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिकॉज आर इज बिफोर सब्जेक्ट। मैंने बोला कि कन्वर्जन के दौरान हम लोग इस इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में नहीं रहने देंगे बल्कि इसको अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। तो तरीका क्या होगा कि इस यू का जो भी चेंज प्रोनाउन होगा वो पहले आएगा। ठीक है, वो पहले आ जाएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब है, जो चेंज हेल्पिंग वर्ब होगा वो बाद में आएगा। ठीक है, मतलब हम लोगों ने बात पढ़ी है कि भाई जब भी यू होता है तो वो किससे चेंज होता है, यू इज ऑलवेज चेंज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऐसे होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ही पहले लिख दिया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हिम की बात हो रही है। फिर ये आर यू प्लेइंग क्रिकेट, विच टेंस इज इट, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज ऑलवेज चेंज्ड इन पास्ट कंटिन्यूअस। तो मैंने ही के साथ यहाँ पे was यूज कर लिया। we asked him if he was playing cricket. Points to remember: first, we use an additional word if or whether. Second, हम लोग भाई कन्वर्जन के बाद सब्जेक्ट को पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स को बाद में यूज करेंगे। चेंज प्रोनाउन होगा, मतलब जो भी चेंज प्रोनाउन होगा वो पहले आ जाएगा, जो भी चेंज सब्जेक्ट होगा पहले आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो बाद में आएंगे। ये रूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। दिस इज समथिंग दैट रिक्वायर्स सीरियस अटेंशन। ठीक है जी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ दीज आर डिटेल्ड क्वेश्चंस। डिटेल क्वेश्चंस है ना वो रिलेटिवली उससे कंफर्मेटिव क्वेश्चन से थोड़े से आसान है। उसूल इसके अंदर भी वही है। पहली बात, WH वर्ड वुड रिमेन द सेम इन कन्वर्जन। कन्वर्जन के अंदर हम लोग कोई एक्स्ट्रा वर्ड लाइक इफ और वेदर यूज नहीं करते, बल्कि WH वर्ड सेम रहता है, उसको ऐसे रिपीट कर लेते हैं। और दूसरा वही बात जो हम लोगों ने पिछली दफा कर दी कि सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब फिर बाद में होगा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है वी सेड टू हिम व्हाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो द वर्ड वाई वुड रिमेन सेम, यू सी द वर्ड वाई इज द सेम। तो सेड टू की जगह पे मैंने लगा दिया आस्क। सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर, मतलब यहाँ पे कोई भी एडिशनल वर्ड नहीं है तो हम लोग जो भी WH वर्ड होगा उसी को यूज करेंगे। वी आस्क्ड हिम व्हाई। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है, ये प्रोनाउन है यू। मैंने क्या बोला था कि हम लोग इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव हम लोग सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो इसका जो भी चेंज प्रोनाउन है वो हम लोगों ने पहले लिखा और हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखा। सेंटेंस इज बिकम वी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में था, इसको हम लोगों ने पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो दिस इज समथिंग दैट वुड रिक्वायर योर एफर्ट, जिसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आई होप कि मैं आप लोगों को अपनी बात समझा पाया। अब इसके अंदर भाई कुछ सेंटेंसेस हैं, ये कंफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अगर लिखना चाहें तो लिख लें।
क्योंकि फिर हम लोग इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे अपनी लाइफ सेशन के अंदर। ठीक है, ये कंफर्मेटिव क्वेश्चन है सारे। शी सेड टू मी, आर यू कमिंग विद अस? I said to him, were you present at the meeting yesterday? The woman asked the stranger, should I help you? He said to him, am I to wait for you till eternity? Fifth politician said to his followers, will you follow me forever? And the sixth one says, he said to us, were you installing a new software? Okay, all of these sentences are confirmative questions. Why are detailed questions के ऊपर? ये कुछ detailed questions हैं, ये भी आप लोगों ने change करने होंगे. I said to him, who are you? They said to me, where have you gone? He said to me, how long will you have to wait? She said to him, when will you pass this exams? And the fifth one says, he said to her, what were you eating? So then, अब इसके बाद हमारी जो ना वो लास्ट कैटेगरी रह गई है, and that is the conversion of exclamatory sentences. Exclamatory sentences की conversion है, वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक को रैप अप करेंगे। ठीक है, conversion of exclamation होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, exclamation is basically a sign, आपने देखा होगा वो ये वाला साइन जो होता है, आजकल संस्कृत का भी चल रहा है ज्यादा, लिखा हो गया वो। खैर, so exclamation basically defines your sudden feelings or emotions। ठीक है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन जहाँ पे लग जाता है ना, तो उसको हम लोग exclamatory sentences के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो primarily we can categorize exclamatory sentences in three states। अच्छा, exclamations इंसान की feelings है ना वो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम लोग बेसिक लेवल के ऊपर उसको इन तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अ पर्सन exclaims with wonder, जब वो बहुत हैरान हो। A person exclaims with joy or happiness, जब वो बहुत खुश हो। And a person exclaims with sorrow or grief, जब वो बहुत ज़्यादा अफसरदगी के आलम में हो, अफसोस के अंदर हो। ठीक है जी, we use any of the above given expressions instead of exclamatory word in indirect speech। जब indirect speech के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो जो भी exclamatory word होता है लाइक हुर्रा और अलास और whatever, तो उसको रिपीट नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जगह पर ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो भाई, सेंटेंस है, he said, oh I lost my wallet। नेक्स्ट सेंटेंस है, she said to him, wow what a beautiful flower it is। देखो भाई, मैं पहला सेंटेंस बता रहा हूँ, दूसरा सेंटेंस के अंदर वो होगा, बाकी सेंटेंस हम लोग खुद कर लेना। oh I lost my wallet, this is for sure sorrow, ग्रीफ है, अफसोस का इज़हार किया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं सैड की जगह पे लिखूंगा he exclaimed with sorrow। ठीक है, he exclaimed with sorrow that। नाउ एक्सक्लेम विद सॉरो का वर्ड यूज ही मैंने इस वजह से किया क्योंकि यहाँ पे ये ओह लिखा हुआ था। ठीक है, दैट डिफाइंस के बंदा अफसोस के अंदर है, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, रेपिटेशन आ जाएगी। ठीक है जी, सेंटेंस बनेगा ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट। फिर बाकी की कन्वर्जन जो है वो सेम है इससे पहले जो हम लोग करते हुए आए हैं। आई लॉस्ट माई वॉलेट, इसके अंदर एक प्रोनाउन है आई, जो कि हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे, वो ही में चेंज हो जाएगा। लॉस्ट माई वॉलेट, दिस इज पास्ट सिंपल एंड पास्ट सिंपल इज ऑलवेज चेंज्ड इन पास्ट परफेक्ट। तो आपका अल्टीमेट आंसर बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर वो होगा शी सेड टू हिम वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो दिस इज एक्सप्लेन विद वंडर, हो सकता है बहुत सारे लोगों की नजरों में दिस इज एक्सप्लेन विद जॉय हो। इट डिपेंड्स, सेंटेंस सब लोगों का स्पेस गलत नहीं होता। आंसर होगा शी एक्सप्लेन विद वंडर टू हिम दैट। अब आगे देखो, मैंने यहाँ पे वाव का वर्ड रिपीट नहीं किया। दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट वाज, ये इट इज था, प्रेजेंट सिंपल था, तो इसको हमने पास्ट सिंपल के अंदर चेंज कर दिया। Now these are the remaining sentences, ये 4 to 7 चार जुमले हैं, इसको आप लोग चेंज कर लेना। First, fourth sentence says Beckham said to him how intelligent you are। Beckham himself was so intelligent, he was a football player, captain of English football team. Anyway, they said, alas, we have failed the test। My mother said, alas, I could not provide services to my father in his last stages। And the seventh one says, intelligence officer said, Hurrah, I have decoded the cryptic talk between the suspicious people। ठीक है जी, सो दीज फोर आर द सेंटेंसेस, आप लोग इनको कन्वर्ट कर लिएगा। आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी इशू,
हमारी लाइव सेशन स्टार्ट होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद एक क्लास और होगी एंड देन वी हैव आवर लाइव सेशंस। तो आप अपनी क्यूरीज को जमा करके रखिएगा सो दैट वी कैन डिस्कस देम इन ग्रेट डिटेल। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।